پیسہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ عوام کی امانت ہے. یہ پیسہ ٹیکس کا جو اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے نہیں، سرے کے محل بنانے کے لیے نہیں، پینما کے ذریعے لندن میں فلیٹ خریدنے کے لیے نہیں، اربوں ڈالر سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کے لیے اور ہیرے کے ہار رکھنے کے لیے نہیں، عوام کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے. عمران خان کے ہوتے ہوئے عوام کا ایک ایک پائی جو ہے، ایک ایک پیسہ جو ہے، وہ عوام کی بہتری کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کراچی والوں کو میں اب شاید ہماری باتوں کا، کیونکہ بڑے ترسے میں کراچی والے، پرائم منسٹر صاحب اتنی انہوں نے لوگوں سے وعدے سنے ہیں اور کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا. شاید آج کے بعد لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا. اور جس طریقے سے خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ شاید کراچی کو بھی اب یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ آخرکار پاکستان میں ایک حکومت آئی ہے وفاق میں، اور ایسا ایک وزیر اعظم آیا ہے جو کراچی کو بھی اپنا اتنا ہی سمجھتا ہے جتنے کراچی والے سمجھتے ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ جی. دل خوش ہو گیا، قسم سے بہت دل خوش ہوا ہے، کیونکہ ہم اسی لیے تو ہم اسد صاحب کو اپنا کہتے ہیں نا کراچی کا. بیکاز کراچی نیڈس ٹو گو اپ، اینڈ کراچی کو چاہیے ایسے لوگ. گورنر صاحب آپ کو بھی میں مسکا نہیں لگا رہی، میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ واقعی کراچی کو ایسے لوگ چاہیے جو ڈوئرز ہوں، صرف ٹاکرز نہ ہوں. کیونکہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بٹ پروو کرنا. اسی لیے میں وزیر اعظم صاحب کو بھی اتنی میں ان کی عزت کرتی ہوں، رسپیکٹ کرتی ہوں، بیکاز ہی از اے ڈوئر. جو بھی جو کہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کام کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اینڈ اس کی ان سے بہت میرے دل سے رسپیکٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں کراچی، اور ہم نے ان کو ویلکم کیا، اور ہم پھر سے کہوں گی کہ بہت امید ہے کہ آپ آتے رہیں اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے شروع ہوتے رہیں. اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم صاحب کو انوائٹ کروں ٹو سے سم تھنگ، اس سے پہلے ایک بس کا ماڈل ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب اور اسد عمر صاحب آپ کو پریزنٹ کریں. سو یس، سو پلیز کم اپ آن اسٹیج، کیونکہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس میں نے کرنا ہے اسپیچ سے پہلے. کچھ ذرا تالیاں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. کمزور تالیاں ذرا زور والی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اور دل سے کہوں گی، میں یہ کہہ لوں، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی آن ہے آپ، ہمارے وزیر اعظم ہیں آپ. پلیز گیو اے بگ ہینڈ فار آور پرائم منسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مصباح بہت بہت شکریہ. آپ سب کو کسی کو نہیں پتا ہوگا، مصباح چھوٹی سی ہوتی تھی جب کرکٹ میچیں دیکھنے آیا کرتی تھی، جن دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا. تب سے پوٹینشیل تحریک انصاف تھی. ابھی تحریک انصاف بنی نہیں تھی، یہ پہلے سے تحریک انصاف میں تھی. میں آج ایس آئی ڈی سی ایل جاوید قریشی آپ کو اور اسد عمر خاص طور پہ آپ کو اور عمران اسماعیل آپ کو، کہ آپ نے جس جذبے سے یہ پرسو کیا، یہ گرین لائن اور کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اور ٹرانسفارمیشن پلان کو بھی، تو میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پہلی چیز تو کوئی بھی ماڈرن سٹی ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اور اگر آپ ماڈرن سٹیز کو دیکھیں، اور جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے خاص طور پہ چائنا کے جو شہر دیکھے ہیں، وہ صرف اور صرف اتنی بڑی بڑی آبادی وہاں رہتی ہے، اور وہ اس لیے وہ شہر کامیابی سے چلتے ہیں کیونکہ ادھر ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. اور جس طرح ابھی اسد عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ کراچی پاکستان کا انجن آف گروتھ ہے. کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے. ہر ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہوتا ہے
जो सारे मुल्क को चलाता है, मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है। लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है। न्यूयॉर्क, खैर अमेरिका बड़ा मुल्क है, लेकिन न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका पे, और उसी तरह पेरिस का फ्रांस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और ये एक पहला कदम है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जिस तरह असद उमर ने आपको डिटेल्स में बताया कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी। आज शुरू है, ट्रायल रन होगी और फिर ये शुरू होगी। लेकिन मैं आगे भी जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, कराची को हमने अपनी जिंदगी 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूँ, और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा। यानी जो रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। और उसकी वजह है कि कभी भी कराची को का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। तेहरान चले जाएं आप, चले अपने हमसाए मुल्कों को देख लें। तेहरान के अंदर अगर आपको हैरत होगी कि इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अमेरिका की सैंक्शंस ने उनकी खुशहाली को रोका हुआ है। लेकिन अगर आप कराची को, तेहरान को देखेंगे तो आपको एक मॉडर्न सिटी नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि तेहरान की जो मैनेजमेंट है वो मॉडर्न है। उसकी वही मैनेजमेंट है जो कि लंदन की है, जो कि पेरिस की है, न्यूयॉर्क की है। वो एक शहर की जो मैनेजमेंट है वो एक मुल्क की तरह है। सारी जो शहर के अंदर हर किस्म की जो शहर के अंदर सहूलतें देनी है, ट्रांसपोर्ट है, पानी का सिस्टम, सीवरेज, वो सारा शहर खुद प्रोवाइड करता है। पैसा भी वो खुद इकट्ठा करता है, खर्च भी वो खुद करता है। और ईरान का जो तेहरान का, जब मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा है आपका, कितना आप पैसा इकट्ठा करती है तेहरान, अब ये पीएसडीपी से पैसा नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से नहीं, तेहरान सिर्फ तेहरान खुद ही पैसा इकट्ठा करता है। और $500 मिलियन है, $500 मिलियन इकट्ठा करता है तेहरान। और इसलिए वो मॉडर्न सिटी है सैंक्शंस के बावजूद। उसके मुकाबले में कराची में देखें कितना पैसा इकट्ठा होता होगा। मैंने कोई अंदाजा लगाया था, एक दफा कैलकुलेट किया था, $30 मिलियन भी नहीं है इसका। तो इसलिए कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं, उसका बनना मुश्किल होगा। इसीलिए जो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये जरूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। यानी कराची जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, उसी तरह कराची की भी जो इलेक्शन हो, जिस तरह हम अब लाहौर की करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद और पेशावर, जो उधर पंजाब में और केपी में इलेक्शंस हो रही हैं, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट होगा, और वो बिल्कुल उसी तरह शहर को चलाएगा जिस तरह मॉडर्न सिटीज चलती हैं, जिनका मैंने नाम लिया अभी। दूसरी चीज कि जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो वादे किए थे, वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब चल रहे हैं। नाले साफ करने वाले और ये जो फ्रेट का कॉरिडोर है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा कराची उस तरफ कंजेशन हो जाती है, वहाँ पोल्यूशन अलहदा है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है और जिसको मैं खुद वापडा के साथ और वापडा के चेयरमैन के साथ खुद फॉलो अप कर रहा हूँ, वो है K4, कराची का पानी का मसला। और ये हमें सबको पता है कि ये जो अजाब आता है कराची के लोगों के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो बेचारा गरीब तबका है, उनको जो पानी नहीं मिलता, बेसिक चीज़ है पानी, तो उसके लिए मैं आपको खुशखबरी ये है
जिस तरह अभी असद उमर ने टाइम लाइन्स आपको दी कि अगले महीने इंशाल्लाह ये अप्रूव होके तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 14-15 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो चुकेगा। तो 2023 में इंशाल्लाह ये आप देखेंगे 2000 अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। और ये क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की आती थी, तो मुझे इसके लिए तवज्जो भी मेरी पूरी इस पे, और मैं आपको इंशाल्लाह खुशखबरी हम देंगे इसकी जब कराची तक पानी पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो दो चीज़ें मैं और सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने एक वो काम किया है पाकिस्तान में जो कि डेवलप्ड मुल्कों में भी नहीं है, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। एक कमज़ोर या गरीब घराने के अंदर सारी रिसर्च एक चीज़ बताती है कि जो घराना गुर्बत की लकीर से ऊपर भी होता है, एक बीमारी की वजह से सारा घर गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है, मकरूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि अल्लाह कभी मुझे मौका देगा तो एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में लेके आऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पहले पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, उन्होंने शुरू किया, लोगों ने कहा कि खर्चा बर्दाश्त नहीं होगा, और बड़ी इसके ऊपर हमें शुरू में लोगों को शक था कि ये नहीं कामयाब होगा। आज पख्तूनख्वा में सारे खानदानों, जितने भी खानदान हैं पख्तूनख्वा में, सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुकी है। 10 लाख रुपया एक खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद पंजाब में हमने शुरू किया, थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया, और अब जनवरी से लेकर मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। बलूचिस्तान भी अब तैयार हो गया है, जिधर हमारी हुकूमतें हैं आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी तैयार हैं, उधर भी वो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे सबके लिए। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहां भी फैमिलीज़ के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और इसके अलावा जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूं बंडल आइलैंड की, जो ये कराची के पास जजीरा है, ये बहुत ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें जो इन्होंने एनओसी दे के वापस ले लिया था, इससे सबसे ज़्यादा सिंध को फ़ायदा है। सिंध सबसे ज़्यादा इससे गेन करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां सिंध में जाएंगी, एक मॉडर्न शहर बनेगा, क्योंकि शहर हमारे फैलते जा रहे हैं। जितने शहर फैलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल है सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल उधर प्रोवाइड करने का। इसलिए ज़रूरी है कि एक मॉडर्न शहर बने, और मॉडर्न शहर जो ऊपर जाए, जिस तरह दुबई है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, जो मॉडर्न शहर है। क्योंकि ये अगर फैलते गए, सीवरेज सिस्टम और पानी और ये सब कुछ अम्यूनिटीज़ ना ये सप्लाई कर सकेंगे, फिर हमारे जो अनाज पंजाब वगैरह में हमारी फूड सिक्योरिटी के आगे इश्यूज आ जाएंगे। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमने लोगों के लिए, उनके लिए अनाज उगाना है, तो वो ज़मीन वो शहरों के अंदर आती जा रही है ज़मीन। इसलिए ये मॉडर्न सिटीज़ जो लाहौर में हम बना रहे हैं, रावी सिटी, वो एक नया शहर है, उसमें फिर हमने दरख्त उगा रहे हैं, उसकी पूरी एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ताकि लोगों के लिए वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आज लाहौर में हैं। क्योंकि लाहौर फैलता गया, किसी ने सोचा ही नहीं, अब पोल्यूशन के बड़े सिवियर प्रॉब्लम्स हैं लाहौर में। तो इसीलिए कराची को भी, और कराची में भी पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ऊपर है। यहां भी ज़रूरत है कि आपके एक मॉडर्न सिटी बने जो ऊपर जाए, और साथ फिर आप उसकी वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ लगें। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि सारा फ़ायदा सिंध को है। फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फ़ायदा करेगा, वो भी पाकिस्तान को फ़ायदा है। तो दो हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा ज़रूरी है कि सिंध
गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करें। और जो हम जब चीज़ें करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम मिल के करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। तो मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपया ज़्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फ़र्क हो, और 250 रुपया बड़ा फ़र्क होता है गरीब लोगों के लिए। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चलें तो ये हमारे मुल्क का फ़ायदा है। मैं आखिर में फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ SIDCL को, असद उमर आपको, इमरान इस्माइल आपको। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। बड़े शहर को चलाने के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। कराची को मॉडर्न शहर बनाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मंसूबों पर काम